وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی دورہ ترکمانستان میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے انتہائی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور افغان طالبان کے مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکیے کے کردار کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن تب ہی ممکن ہوگا جب پاکستان کی سلامتی کے خدشات کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے علاقائی روابط کے لیے اسلام آباد، تہران، استنبول ریل نیٹ ورک کی بحالی پر زور دیا اور سیاسی توانائی، اقتصادی، دفاع اور سرمایہ کاری روابط مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین سے اٹھنے والی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے خدشات دور کرنے کے لیے افغان عبوری حکومت بامعنی کارروائی کرے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جاری امن کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے اور سرحدی سلامتی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکمانستان کے عالمی فورم میں افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھا دیا۔ اشخاباد میں عالمی فورم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان رجیم سے افغانستان میں سرگرم دہشت گرد عناصر پر قابو پانے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے زور ڈالے۔ پاک افغان جنگ بندی اب بھی نازک صورتحال میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ نفرت اور تنازعات نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل دیا ہے۔ While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And in the meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی 23 شرائط مان لی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کو شوگر سیکٹر کو حکومتی کنٹرول سے آزاد کرنا ہوگا۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں گندم کی امدادی قیمت میں مقرر نہیں کریں گی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رہے گی۔ لائن لاسز کم کر کے لاگت میں کمی کرنا ہوگی۔ بڑے شاپنگ مالز پر 40,000 جگہوں پر پوائنٹ آف سیل لگا کر اسے ایف بی آر کے سسٹم سے منسلک کرنا ہوگا۔ چاروں صوبے سیلز ٹیکس کی یکساں شرح نافذ کریں گے۔ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام جاری رکھنے کے لیے پاکستان نے جن شرائط پر عمل درآمد کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت پاکستان کو توانائی، مالیاتی، سماجی شعبے، ادارہ جاتی اصلاحات، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق 23 شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ان شرائط کے مطابق پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں تمام صوبے بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہیں دیں گے اور RLNG کے نئے بیرونی معاہدے بھی نہیں کرے گا۔ کسی بھی قسم کے ایندھن پر فیول سبسڈی نہیں دی جائے گی یا کسی بھی کراس سبسڈی اسکیم کا اجرا نہیں کیا جائے گا۔ کسی قسم کے سیکٹورل قرضوں کی فراہمی کے اہداف قرضوں کو مختص کرنے کے فیصلے نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک سے حکومتی سیکیورٹیز کے خاتمے پر مزید توسیع یا مارکیٹ خریداری کو بھی ختم کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ قرض پروگرام کے دوران اسٹیٹ بینک کوئی نئے قرض کی اسکیم متعارف نہیں کرا سکے گا۔ اس کے علاوہ درآمدات پر کسی قسم کی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی متعارف کرانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ SIFC سرمایہ کاری کے لیے کسی قسم کی مراعات تجویز کرے گی اور نہ ہی حکومت ٹیکس مراعات یا گارنٹی فراہم کرے گی۔ نئے اسپیشل اکنامک زون کو کسی قسم کی مراعات نہیں دی جا سکیں گی۔ موجودہ مراعات کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے وفاقی و مرکزی افسران کے ساتھیات پبلک کیے جائیں گے۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ की मंजूरी दे दी है, जिसमें से $40 करोड़ रियासती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के लिए और $14 करोड़ सिंध के साहली इलाकों की बेहतरी के लिए मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। इस रकम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तंजीम में नौ भी की जाएगी। ADB की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि इमदादी मंसूबे से सिंध में मंसूबे से 5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इस मंसूबे से 1.5 लाख हेक्टर ज़रई ज़मीन महफूज बनाई जाएगी और 22,000 हेक्टर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी। ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड से $4 करोड़ का इजाफी ताउन भी किया जाएगा। सिंध में शुरू किए जाने वाले मंसूबों में निकासी आब, सैलाब से बचाव, तमर के जंगलात की बहाली भी शामिल है। मंसूबे से सिंध के साहिली इलाकों में बेहतरी लाने की कोशिश भी की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी है। महमूद खान अशरकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी कमेटी में शामिल हैं। सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। PTI एलामिया के मुताबिक सियासी कमेटी में चेयरमैन PTI गौहर खान, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, असद कैसर और फिरदौस शमीम नकवी भी शामिल होंगे। उनके अलावा शेख वकास अकरम, महमूद खान अशरकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब और शिबली फराज भी कमेटी के रुकन होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी, मलिक अहमद खान बशर, सजाद बरकी, आलिया हमजा, जुनेद अकबर, हलीम आदिल और दाऊद काकड़ कमेटी में शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे खालिद खुर्शीद, सरदार क़य्यूम न्याजी, आमिर डोगर, फौजिया अरशद, कमल शोज़ब और लालचंद मलही भी कमेटी में शामिल हैं। एलामिया के मुताबिक तजर्बाकार अरकान पर मुश्तमिल सब कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फ़ंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक़ है। वो वज़ीर आज़म से कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फ़ंड्स दिए जाएँ। लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि फ़िज़ा अच्छी है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। ख्वाहिश है कि इलेक्शन जीत कर आवाम की खिदमत करें। सदर नून लीग ने कहा कि मरियम नवाज ने पंजाब में ज़बरदस्त मंसूबे शुरू किए हैं। कुछ मंसूबे मुकम्मल होना शुरू हो गए हैं, कुछ जल्द मुकम्मल होंगे। NFC अवार्ड जो है जी, वो बजाय के डिमांड जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से, सेट फार्मूले के तहत होना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे, कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से इसका जो फंड्स हैं वो दोनों सूबों के जो हकूक़ हैं उनके मुताबिक वहाँ से मिलने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क की सालिमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। गवर्नर हाउस लाहौर में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो खुद पंजाब की गली मोहल्लों में जाएंगे और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। वो अब पार्टी कारकुन अब और बेहतर तरीके से बिलावल का पैगाम पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के मौके पर तलबा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद और मुसलसल तन्हाई में रखा जा रहा है। बानी PTI की बहनों पर वाटर कैनन चलाना और बेइज्जती करना शर्मनाक इक़दाम है। KP हुकूमत इस नारवा और गैर इंसानी सलूक की भरपूर मजम्मत करती है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि ज़म-अज़ला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था। 7 साल में सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए। तकरीबन 532 अरब रुपए अब भी बकाया हैं।
تمام محکمے اپنے بقایا جات پر وفاق کو ہفتہ وار خط لکھیں تاکہ سب کچھ ریکارڈ پر ہو۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ صوبے میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر پر پابندی عائد ہے۔ 200 سے زیادہ سفارشیں موصول ہوئیں لیکن کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ کراچی یلو لائن منصوبے کی لاگت 190% بڑھ گئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال گزشتہ 6 سال میں منصوبے کے سست روی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے کراچی یلو لائن منصوبے کے لیے 178 ارب 59 کروڑ روپے کی نظر ثانی شدہ لاگت کی منظوری دی ہے۔ 2019 میں اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 61 ارب 43 کروڑ روپے تھا۔ CDWP نے 10 ارب 55 کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دی۔ کراچی یلو لائن سمیت 256 ارب روپے مالیت کے 4 منصوبے حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو بھیجنے کی سفارش کر دی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت CDWP اجلاس میں وزیر اعظم کے تعلیم فنڈ کے لیے 14 ارب روپے اور AFIC سمیت قومی ادارہ امراض قلب میں توسیع کے لیے 12 ارب 94 کروڑ روپے کا منصوبہ بھی ایکنک کو بھیجنے کی سفارش کی گئی۔ گلگت بلتستان اور سابق فاٹا کے اسکولوں اور اسپتالوں کی سولرائزیشن کے لیے 2 ارب 98 کروڑ روپے کا منصوبہ بھی منظور کیا گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے پنجاب میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بھاری جرمانوں پر نظر ثانی اور دیگر مطالبات پر کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ٹرانسپورٹ کے معاملات حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کسٹمز نے رواں مالی سال ایئرپورٹس پر 30 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونا اور چاندی ضبط کر لیا۔ FBR کے مطابق چاندی کی اسمگلنگ کے واقعات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چاندی کی درآمدات اسٹیٹ بینک اور وزارت تجارت کے قواعد و ضوابط کے تحت ہوتی ہیں۔ مارکیٹ جائزوں کے مطابق چاندی کی قیمت میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے بائننس اور HTX کو NOC جاری کر دیا ہے۔ NOC اداروں کے ساتھ مشاورت اور باضابطہ جائزہ کارروائی کے بعد جاری کیا گیا۔ بائننس اور HTX کو پاکستان میں ابتدائی تیاری اور مشاورتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا کہنا ہے کہ یہ NOC مکمل آپریٹنگ لائسنس نہیں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ NOC فریم ورک کا آغاز مالی نظم اور ذمہ دارانہ جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ PVARA دنیا کی پہلی AI سے چلنے والی ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ NOC کا اجرا مکمل لائسنس یافتہ اور ریگولیٹڈ ماحول کی طرف پہلا قدم ہے۔ NOC کے اجرا سے صارف کے تحفظ، مالی شفافیت اور ذمہ دارانہ جدت کو بنیاد بنایا جائے گا۔ کئی ملکوں کا سفر طے کر کے دریائے سندھ پہنچنے والے مہمان پرندے پیلیکن کو سندھ کی مہمان نوازی اور یہ سرزمین ایسی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ مقامی ملاح نے زخمی پرندے کی مدد کی تو وہ گھر کا فرد بن گیا۔ یہ کہانی ہے پیلیکن اور دریائے سندھ کے ماہی گیر مجید جسکانی کی۔ دیکھتے ہیں علی نعیم کی رپورٹ۔ مجید جسکانی اور پیلیکن کی محبت دیدنی ہے۔ دونوں ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں اور شکار پر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں۔ مجید نے پیار سے پیلیکن کا نام ببن رکھا ہے۔ 10 سال قبل مجید کو یہ پیلیکن زخمی حالت میں ملا، جس کا علاج کروانے اور دیکھ بھال کرنے پر ببن مجید کا ہی ہو کر رہ گیا۔ ہم ایک دن رات کو 8 بجے جال لگا رہے تھے تو یہ جانور بیچارہ زخمی حالت میں مجھے کنارے پہ ملا۔ کو لے آئے، ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے میڈیسن دی، ہم نے اور اس کا اپنا بھی علاج کیا گیا۔ پھر ہم نے اس کو دل سے مچھی کھلائی، تقریباً 2 کلو مچھی کھا گیا۔ محلے والے آگے بھائی مسجد نے پرندہ پکڑا ہے، مسجد نے پرندہ پکڑا ہے۔ ایسے آدمی بھی سے بولو یار اس کو کاٹے تو محلے میں گوشت بانٹ کے کھائے، مجھے نہیں بھاگا۔ یہ پرندہ کل کو صحیح ہو گیا، اس کو میں آزاد کر دوں گا بھائی۔ اس کو ہم پالتا رہا، اس کو مچھی کھلائی۔ ایک سال گیا جیسے بچے میرے گھر میں نے کھودا گیا، تم بلاؤ تو اسے دیکھے گا۔ ببن، ہاں ببن نام کیسے رکھا آپ نے اس کا؟ دل میں سے ایک نکلا،
दिल में तो ये उड़ गया तो उधर जाके ढीठ बन के बैठ गया आने। अरे मैंने बोला बब्बन आ जा यार, आ जा, तो इसने पर मारे। मैंने बोला आज से तू बब्बन हो गया भाई। मजीद मल्लाह का कहना है कि बब्बन के पैर में लगने वाली चोट के बाद इसके इलाज के लिए उनके पास रकम नहीं। हमारे ये जो दरिया का गुजर नहीं है, पेट गुजर ही नहीं होता। मैं अपना पेट भरूं या बच्चों का भरूं या इस गरीब का भरूं। बब्बन से प्यार सिर्फ मजीद ही नहीं बल्कि सारा मोहल्ला करता है, जबकि मजीद मल्लाह के पोते और पोतियां इसके साथ खूब खेलते हैं। हम स्कूल से आते हैं, हम बब्बन के पास जाते हैं, भाई बब्बन बब्बन कहाँ है, बब्बन बब्बन से मिलते हैं, फिर मच्छी देखते हैं, फिर बब्बन को मच्छी खिलाते हैं। मोहब्बत वो ज़बान है जो इंसान हो, चरिंद या परिंद, सब समझते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल मजीद और बब्बन की है। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। महकमा मतरूका वक्फ अमलाक ने कराची में कॉटन एक्सचेंज की इमारत को सील कर दिया। कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि उन्हें ये इमारत 1982 से 2081 तक 99 साला लीज़ पर दी गई थी। आई चुन्नीगढ़ रोड पर कायम कॉटन एक्सचेंज की इमारत में पहुंचे तो FIA अफसरान भी उनके हमरा थे। उन्होंने वहां मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाला और इमारत को सील कर दिया। महकमा मतलूका वक्फ इमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर इसरार हुसैन शाह के मुताबिक इस हवाले से कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन से बातचीत भी की गई थी, लेकिन उनका जवाब इत्मीनान बख्श नहीं था। यहाँ मौजूद दफातर की इंतजामिया दफातर किराए पर हासिल करने के लिए मतरूका वक्फ इमलाक से रुजू कर सकती है। दूसरी तरफ कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि उन्हें 1982 से 2081 तक 99 साला लीज़ दी गई थी। कराची कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन ने अपना जवाब जमा कराया था, जिसमें महकमा मतरूका वक्फ इमलाक पाकिस्तान को इमारत की मिल्कियत के तमाम कानूनी सबूत फराहम किए गए थे। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने आलमी रहनुमाओं से इंसानी हुकूक और सहाफ़ती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करने पर ज़ोर दिया है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को बढ़ते हुए ख़तरात का सामना है। इनमें सहाफ़ियों पर हमले, गिरफ्तारियाँ और सेंसरशिप शामिल हैं। तंजीम का कहना है कि आज़ाद मीडिया ताकतवर अफराद को उनके इक़दामात और फ़ैसलों पर जवाबदेह ठहराने के लिए नागुज़ीर है। मालूमात का आज़ादाना बहाव एक बुनियादी इंसानी हक़ है जो आज़ादी राय, मसावात और तहफ़्फ़ुज़ के हुकूक को यकीनी बनाता है। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में सहूनी मुखालिफ यहूदियों के एक इज्तिमा में शिरकत की। सहूनी मुखालिफ यहूदी फ़िरक़े का ये इज्तिमा वाटरफ्रंट स्क्वायर पर मुनाक़िद हुआ था, जिसमें फ़िरक़े के हज़ारों यहूदियों ने शिरकत की। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में दूसरे ग्रोहों के साथ शहर के यहूदियों ने भी ज़ोहरान ममदानी को बड़ी तादाद में वोट दिए थे। जो बाइडन इंतज़ामिया के तहत अमेरिका में आने वाले अफ़गान शहरियों की सही जांच नहीं की गई। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में बाइडन इंतज़ामिया के दौर में अफ़गान शहरियों की जांच के सुस्त अमल पर भी तनकीद का निशाना बनाया, जिसके तहत 18,000 अफ़गान शहरियों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी गई थी। तुलसी गबार्ड का कहना है कि इन अफ़गान शहरियों की अब जाँच की जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि उनका ताल्लुक या राब्ता किसी दहशतगर्द तंजीम से है या नहीं। बरतानिया को अमेरिका पर दिफाई इन्हिसार ख़त्म करना होगा और नेटो ममालिक को अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना होगा। ये इंतबाह बरतानवी मुसल्लह अफ़वाज के वज़ीर ने एक इंटरव्यू में दिया है। बरतानिया दुश्मन रियासतों की तरफ से इंटेलिजेंस हमलों से निपटने के लिए नया डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी कायम करेगा। तफसील जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद न्याज़ी की रिपोर्ट में। बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। अमेरिका दीगर खतरात से निपटने के लिए यूरोप से तवज्जो हटा सकता है। नेटो ममालिक को दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ज्यादा रकम खर्च करना होगी। एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार करते हुए साबिक स्पेशल फोर्स के कर्नल और बरतानवी मुसल्लह अफवाज के वजीर अलकांस का कहना था कि जंग यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और बरतानिया ने मुमकिन जंग की तैयारी के लिए पूरे मुल्क में मनसूबा बंदी शुरू कर दी है। बरतानवी वजीर का ये मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त सामने आया है जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि रूस का अगला हदफ यूरोप होगा और मगरिब को इसी पैमाने पर जंग के लिए तैयार रहना चाहिए जिस तरह हमारे दादा और परदादा ने पहली और दूसरी जंग लड़ी थी। रवां हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन जंग ना बंद कराने पर यूरोपीय क़यादत को कमजोर करार दिया था
और कहा था कि यूरोप ने माइग्रेशन पर काबू ना पाया तो इसकी तहजीब मिट जाएगी। बरतानवी वजीर अलकांस का मजीद कहना था कि आर्मी बहरिया और फसाइया हमलों का जवाब देती हैं, लेकिन माशरे, सनतें और मईशतें जंग जीतती हैं। बरतानवी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ये इंकशाफ भी किया था कि आर्म फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एहलकारों को जासूसी, हैकिंग और जिस्मानी खतरात में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 50% इजाफा हुआ है, जिसमें मुमकिना तौर पर रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मुलव्विस हो सकते हैं। हुकूमत दुश्मन रियासतों की तरफ से इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का पता लगाने के लिए नया डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट भी कायम कर रही है। इस 5 आइज पार्टनरशिप में बरतानिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी शामिल होंगे और इससे एक ही छत तले मरबूत मालूमात जमा होंगी। जून में वजीर आजम सर केयर स्टॉमर कह चुके हैं कि GDP का 3.5% दिफा के लिए मुख्तस करेंगे और न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखने वाले F-35A जेट्स भी खरीदेंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन। बरतानिया के शहर ब्रिस्टल के म्यूजियम से 600 से ज़ायद कीमती तारीखी नवादरात चोरी। बरतानवी पुलिस के मुताबिक चोरी होने वाली अशिया में फौजी तमगे, जेवरात, हाथी दांत के फनपारे, चांदी के टुकड़े और कांसी के मुजस्समे शामिल हैं। ये तमाम नवादरात ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ कलेक्शन का हिस्सा थे जो बरतानिया के 9 आबादियाती तारीख से जुड़े हैं। CCTV वीडियो में 4 मुश्तबा अफराद को बैग उठाए देखा गया। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। तहकीकाती अफसर के मुताबिक चोरी की गई अशिया ज़्यादातर शुदा तारीखी वर्सा थीं। समंदर पार पाकिस्तानियों के वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी ने समंदर पार पाकिस्तानी बरादरी के वीज़ा मसाइल हल करने के आज़म का अदा किया है। दुबई में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़ा मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि वो इन मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म को भी रिपोर्ट पेश करेंगे। इस सिलसिले में वो आज अबू धाबी में हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुल्तान में शहरियों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने अहम मकामात पर पैनिक बटन नस्ब कर दिए हैं। हंगामी सूरत हाल में एक बटन दबाएं और मदद फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। इसी सिस्टम ने एक शहरी का कीमती वक्त और बड़ा नुकसान बचाया। देखते हैं ये सब कैसे हुआ, जौदत नदीम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान का कचहरी चौक मसरूफ़ तरीन रोड, जहाँ हर वक्त ट्रैफिक रवा दवा और रश लगा रहता है। ऐसे में एक नौजवान हमजा शेख भी अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके फ़ोटोकॉपी करवाने आया। चंद मिनट बाद वापस लौटा तो इसकी मोटरसाइकिल गायब थी। वो घबरा गया तो इसी वक्त दुकानदार ने इसे पास लगे पैनिक बटन की तरफ इशारा किया। कोई सुन पा रहा है मुझे? वालेकुम सलाम। मेरी ना यहाँ पर कचहरी चौक में मैं मौजूद हूँ। मेरी गाड़ी यहाँ से ना चोरी हो गई है, तो क्या हेल्प कर सकती हैं आप? कचहरी चौक। सर आप मुझे डिटेल्स बताएंगे कौन सी जगह से चोरी हुई है? पैनिक बटन सिर्फ एक अलार्म नहीं, ये शहरी और पुलिस के दरमियान बराह रास्त राब्ता है। कंट्रोल रूम में मौजूद ऑपरेटर न सिर्फ शिकायत सुनते हैं बल्कि फोर्स को फौरी अलर्ट भेज देते हैं। ये बटन घबराहट में उम्मीद बन जाता है, एक टच में मदद मिलती है। पैनिक बटन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि मुल्तान में पैनिक बटन भी इंस्टॉल हो चुके हैं और पैनिक बटन हमारा 2 वे कम्युनिकेशन है और बेसिकली ये बहुत लेटेस्ट, जैसे आप इससे बहुत ज़्यादा शहरों को बेनिफिट है कि अगर आपके पास इवन कोई भी कम्युनिकेशन का वे नहीं है, मोबाइल नहीं है या आपके पास कोई आप फौरी पुलिस से रब्ता करना चाहते हैं, तो जहाँ पर हमारे कैमरा जहाँ पर हमारे पैनिक बटन इंस्टॉल हैं, तो जो भी पैनिक बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका हमारे साथ फौरी रब्ता हो जाएगा। देन आपको जो भी सर्विसेज पुलिस से या 1122 जो भी सर्विसेज आप चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पैनिक बटन शहरियों को इस एहसास के साथ घूमने, काम करने और सफ़र करने का हौसला देता है कि मदद सिर्फ एक बटन की दूरी पर है। पैनिक बटन ने मुल्तान की शहरी सिक्योरिटी को एक नया रुख दिया है। अब चोरी, झगड़ा या कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, पैनिक बटन दबाएं और मदद फौरी आप तक पहुँच जाती है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।
पाकिस्तान के मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन आज कोयटा में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट में 3 आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुरज़्म हैं। सुल्तान गोल्डन आलमी रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक में नए रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल सुल्तान गोल्डन मोटर कार पर कई कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं। अब वो एक बार फिर मैदान में नजर आएंगे। कोयटा से शाहब उमर की रिपोर्ट। पेशिन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के मायनाज स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद खान गोल्डन ने 1982 में मोटर कार जंप का आगाज़ किया। 1987 में 22 गाड़ियों के ऊपर से जंप का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। वो तेज़ तरीन रिवर्स ड्राइव और बर्निंग का रैंप जंप समेत मुतादिद स्टंट्स कर चुके हैं। सुल्तान गोल्डन ने कोयटा, पेशिन, मुल्क के दीगर शहरों और दुबई में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जबकि वह 1994 में एक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश के दौरान ज़ख्मी भी हुए। एक वो मैंने 1994 में एक जंप किया था, उसका नाम था टी बॉन्ड डाइव, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था। वो है कि गाड़ी जंप करता है, गाड़ियों में डाइव मारता है, मगर चूंकि हमने तो सिर्फ टैक्सी 25 खड़ी किए हुए थे ना, हमने ज़मीन पर डायरेक्ट डाइव मारा, जिससे मेरी गर्दन की हड्डी पे एक फ्रैक्चर हो गया। सुल्तान गोल्डन एक बार फिर आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुरज़्म हैं। वो तेज़ तरीन रिवर्स ड्राइव और दूर मकाम से रिवर्स रैंप जंप में भी आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि ख़तरनाक तरीन बर्निंग का रैंप जंप का मुजाहरा भी पेश करेंगे। एक रिकॉर्ड है रिवर्स स्पीड का, ये है 1 मील्स, तो ये एक अमेरिकन ने बनाया 2022 में, जिसका जो है स्पीड 89 किलोमीटर स्पीड पर इसने ब्रेक किया हुआ है। और दूसरा रिकॉर्ड है वो है फारदस रिवर्स जंप, रैंप जंप है कि रिवर्स पर हमने गाड़ियों को क्रॉस करना है। ये भी एक अमेरिकन ने बनाया 2014 में, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। DHA कोयटा में इवेंट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जहां सुल्तान गोल्डन आलमी रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक में नए रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करेंगे। शायकीन के लिए खुशखबरी है कि यह इवेंट पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची में जारी नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी के मर्द और ख़वातीन एथलीट्स ने अपनी बरतरी साबित कर दी। हॉकी, गोल्फ, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, शूटिंग और बेसबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में 150 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए। कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब आज होगी। कराची में 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी के एथलीट्स जुमे को भी छाए रहे। हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने नेवी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। आर्मी ने फाइनल में 2-1 से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम के दोनों गोल मोहम्मद उवैस ने किए। आर्मी ने गोल कर दिया है। गोल्फ कोर्स पर भी आर्मी के गोल्फर छाए रहे। मेंस प्रोफेशनल में मोहम्मद अशफाक ने 3 स्ट्रोक्स की लीड के साथ गोल्ड मेडल जीता। मेंस एमेचर में साद हबीब 9 स्ट्रोक की बरतरी के साथ गोल्ड मेडल के हकदार हुए, जबकि खवातीन में पारखा एजाज ने गोल्ड मेडल हासिल किया। KBT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले फुटबॉल फाइनल में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से वाहिद फैसला कुन गोल अब्दुल समद ने किया। बॉय स्क्वाड हॉस्टल में वेट लिफ्टिंग के मुकाबले भी मुकम्मल हुए। मेंस इवेंट में वापडा ने 4 गोल्ड मेडल के साथ सबकत रखी, जबकि खवातीन के इवेंट में आर्मी ने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। पाकिस्तान के टॉप वेट लिफ्टर फुरकान अनवर ने आखिरी रोज़ वापडा के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान आर्मी ने टेबल टेनिस की जनरल ट्रॉफी भी अपने नाम की। टेबल टेनिस मुकाबलों के आखिरी रोज़ पूर फवाद ने विमेन और अहमद साजिद ने टेबल टेनिस में मेंस फाइनल अपने नाम किया। मिक्स डबल्स टेबल टेनिस में पंजाब के उवैस और कुलसूम चैंपियन बने। बेसबॉल का फाइनल भी पाकिस्तान आर्मी के नाम रहा। बेसबॉल फाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वापडा को 7 के मुकाबले में 9 रन से शिकस्त दी। KP ने पंजाब को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। नेशनल गेम्स में शूटिंग इवेंट में भी पाकिस्तान आर्मी ने 17 गोल्ड मेडल के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि नेवी ने 15 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। शूटिंग के आखिरी रोज 6 गोल्ड मेडल के फैसले हुए। बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान आर्मी के बॉक्सर्स छाए रहे। आर्मी ने बॉक्सिंग में मर्दों और खवातीन मुकाबलों में मजमूई तौर पर 12 गोल्ड मेडल और वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने मर्दों के बॉक्सिंग मुकाबलों में 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स, जबकि खवातीन में 60 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल करके जनरल ट्रॉफी जीती। नेवी ने मर्दों में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरी, जबकि वापडा ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की।